Yes, good morning to all. Today there was some security issue from the Zoom side. That's why our class was blocked for 30 minutes, and that's why I'm starting the class at 10:30. So सारे लोग कनेक्ट हो गए बेटा, एक बार ट्राई देख लीजिए। ऐसा तो नहीं किसी को 64 पार्टिसिपेंट हैं टोटल, कोई रह तो नहीं गया बेटा। एक बार अपने फ्रेंड्स को देख लीजिए, all are in the all have joined the meeting or not. So please check your friends, all of you have joined the meeting. If anyone is not there, then please call him. Okay, so should I start? Okay, so this is the simple PDA that we already discussed many 2-3 times, and the reason behind this particular question is that here you can see this is the form of W and W reverse, and between this W and W reverse there is one variable you can say, or you can say the separator named C. This is very helpful for constructing this type of PDA because C will be work as the separator. It means that after getting C, you ensure that now you will get the reverse of W. Is it clear? तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो now we will design a new PDA, that is we will design a new PDA for the language L is equals to W reverse, where W belongs to A comma B plus. The meaning of A comma B plus is same as the previous one, that it is the simple combination of A and B, including or excluding null, right? If we write in this format, for example, if we write this one, A comma B whole asterisk, it means any combination of AB including null, but in this case null will not be there. So this is the you can say W belongs to AB plus means the W belongs to any combination of AB excluding null. मतलब AB का कोई भी combination आ सकता है, A आ सकता है, B आ सकता है, AB आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। Now the logic behind this is, suppose you are getting, this is the position of stack, or you can say the initial position of the stack, right? And this is suppose your tape, or the tape is called your input tape, right? So in this case, suppose we assume that W is AB, right? So it means that the reverse of W will be BA. Clear? Clear? So the problem behind this particular question is, please see here, the problem is if we read A from the tape side, our objective is suppose A, B, B, A. This is the top tape position of your problem. So in this situation, you can see, just a minute, वीडियो स्टार्ट करता हूं, इससे आपको थोड़ा दिखाई देगा। Good. So now you can see in this case your machine will start from A, and just you want to push A into the stack. So just you push out this A into the stack. Now next symbol is B, right? So just you push the B into the stack. So this is the no problem in this case, but the problem start here. In this situation, suppose next B is encounter from the tape side, it means that what? It may be the part of W, because ऐसा भी तो हो सकता है A B B A, अगर ये W है तो इसका reverse क्या आएगा? Now reverse will be A B B A, right? So on
this particular B, how can you determine, how a machine can be determined whether this B is the part of W or it is the part of W reverse? So it is not decided with the help of the PDA. So how? Because we can't move behind the reverse side of the PDA. So in this situation, it is not possible for our side that we can move for backward in case of PDA, because in case of PDA, your head will move only the forward direction. So you can't imagine that this B is the part of W or this B is the part of what? This B is the part of W reverse. So in this case, at the time of designing a PDA, we will consider both the both the points. Means we will consider it as the part of W as well as the part of W reverse. मतलब अगर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरीके से कंसीडर करके चलेंगे. इट मे बी द पार्ट ऑफ W, और इफ दिस इज द पार्ट ऑफ W तो क्या करेंगे, पुश करेंगे. और इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ W or it may be the part of W reverse, in this situation we will cancel out this B by this B, right, and this A by this A. Are you getting my point? मतलब इसमें ये हुआ कि इस केस में हमें ये नहीं पता, जैसे उसमें क्या था, C आ गया, तो C से पहले जो भी आ रहा है, this is that will be the part of W. Is it okay? But in this situation, there is no separator or no decider. So how can you decide, or how can your machine or design machine can decide? So in this case, in this situation, what we have to do, just we will assume that this B or a particular alphabet may be the, just we have to write the transition by considering both the cases. In keep in mind, the first one is it may be the part of W. That means you have to push. If it is the part of W reverse, then we have to cancel out. So just we have to write both the transition. बट अब आपकी एक प्रॉब्लम आएगी. आप ये कह सकते हैं सर कि इसमें आपने बी को रीड करने पर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बी आपको रीड हो और स्टैक में बी हो, तो आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस बी को स्टैक में डाल दो, राइट. और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, बी मिले आपको तो आप इसको कैंसिल करा दो, मतलब स्टैक में कुछ मत डालो. यही तो बात कह रहा हूं मैं आपसे, है ना. तो आप लोगों को अब एक डाउट आना चाहिए, और डाउट क्या आ रहा होगा कि सर ये तो सेम ट्रांजिशन है, इस पर ये करना है, आप कह रहे हो यहां पर ये करना है, तो हाउ कैन ए मशीन डिसाइड दैट विच एक्शन शुड बी टेकन, है ना. ये तो आपको कंफ्यूजिंग होगा ना कि आपको ये वाला लें ये वाला लें, मैंने आपको दोनों लिख दिए. तो दिस इज द case of non-deterministic. So for this particular problem, you can design a PDA in the form of non-deterministic nature. Are you getting point? In इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, you have to design the PDA in non-deterministic form. क्योंकि हमें दोनों बातें दिखानी पड़ेगी, because we don't have any separator or any variable between W and W reverse. That's why we have to assume that W का जो particular part है, उसमें कोई input alphabet है, that particular alphabet will be the part of W or will be the part of W reverse. We can't define. That's why we have to write the transition for both. Right? Clear? So this type of problem can be implemented, can be designed with the help of non-deterministic PDA, NPDA. तो इसको हम किसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, NPDA के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं. अभी मैं दिखाऊंगा आपको पूरा. Just this is the logic behind this WWR and why we cannot design a deterministic PDA, because the nature of this problem is not deterministic type. The nature of this particular problem is deterministic type. That's why we have to design a non-deterministic PDA. अब अगर मैं आपसे कल पूछूंगा इंडिविजुअली कि why we are going to design a non-deterministic PDA in place of deterministic PDA, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए. Are you getting my point? नमन, दीपक, आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं अब आपसे पूछ सकता हूं कभी भी. आकाश, हितेश, शिवम, गोपाल, आप लोग रिप्लाई करो बेटा, बाकी लोगों से तो बात होती रहती है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो बिल्कुल भी. विनीत, तनेश,
अब बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम को तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। थैंक यू रोशनी। बाकी लोग जिनका मैंने नाम लिया वो लोग भी रिप्लाई करें। आकाश थैंक यू, शिवम थैंक यू। ठीक है ना, इंटरएक्टिव क्लास होनी चाहिए जिससे कि आपको ऐसा मुझे ना लगे कि आप सुन रहे होगे नहीं, है ना। और जहां आपको लगता है कि सर अब आगे नहीं, एक ही क्वेश्चन बहुत है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन द क्लास मस्ट बी इंटरएक्टिव। ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाँ क्लास लेने के बाद अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, एक क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है सबको समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो 10 लोगों को केवल समझ में आ रहा है। गोपाल तिवारी थैंक यू, ऋषभ थैंक यू आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक समझ में आ गया। अब नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ कैन बी राइट द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। क्या हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं? कैन एनी वन ऑफ यू राइट द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए? कौन लिख सकता है? केवल नाम बता दीजिए मुझे। How many of you can write the transition function for NPDA? आप में से कौन इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिख के बता सकता है? Just write your name. Yes. How many of you have write the transition function of NPDA? मैं इस particular question की बात नहीं कह रहा हूं बेटा। I'm not talking about this particular question. I'm talking about the transition function of NPDA. जो हम transition function लिखते थे, जैसे DFA में कैसे लिखते थे, मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ आपको। टाउ सॉरी Q into sigma 2 to the power Q, ऐसे लिखते थे ना। So this is the transition function for NFA, right? So on the same way, you write the transition function for non-deterministic PDA? How many of you can write this particular transition function? Simiran, Karthik, Simiran, Ram Vallabh, Aishwarya Singh and others, please reply. अब जो नहीं लिख सकते वो नो लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है या जिनको याद नहीं आ रहा है, दे कैन राइट नो। और अगर आपको आ रहा है देन यू कैन राइट यश। नमन ठीक है, जीवेश, रिया, अदर्स प्लीज रिप्लाई। नो वाला अभी तक कोई नहीं आया। उन्नति, बाकी के लोग फटाफट जिनका मैंने नाम लिया, मेघा, सौम्या, अदर्स प्लीज रिप्लाई फास्ट। नंदिनी गुड, अनुष्का गुड, अदर्स प्लीज रिप्लाई। अचल पालीवाल, इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को लिखने में, इसका मतलब या तो आप लोग देख रहे हैं अपने नोट्स को, है ना। नो नीड टू सी द नोट्स। ये चीज ऐसी है जो मैंने आपको बताई थी कि ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। मॉडल डायग्राम क्या है, टपल्स क्या हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच टपल, है ना, ये तो हर समय हम लोगों को पता होना चाहिए। नो नीड टू रिवाइज इट। बाकी शिवम ठीक है, थैंक यू। और बाकी लोगों का कोई ऐसा नहीं जिसको समझ नहीं आया हो, सभी लोग यस बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन सब लोग जानते हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं, है ना। तो कौन ऐसा है? कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आपको याद नहीं है, नहीं मालूम है, देन यू कैन राइट नो। अगर आप नो लिखोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि आपने सही बोला। कोई नहीं है नो वाला, सबको, मानसी, शिवम, सबको यस है, कोई नो वाला नहीं है। तो आगे चलूं? चलिए, वेरी गुड। सो इफ एनीवन आस्क यू about the transition function of non-deterministic PDA, then you can write, मैं just revise कर रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ आपके लिए। This is the simple DFA का केस था। इसमें क्या हो सकता है, आपको नल भी मिल सकता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, because this is the part of tape symbol, right? After this, the third component is the component of the symbols that we read from the or we pop out from the stack. Clear? After this, we can write, we are in a new state, that is Q, and we can write any number of symbol. We can push any number of symbol into the stack. So this is the basic representation of what? This is the basic representation of PDA. Or by default, this basic representation is called deterministic PDA. So if we talk about the non-deterministic PDA, then just it is very simple. Just write 2 to the power Q into tau star. So it is actually not 2 to the power. This is the representation way
of this non-deterministic case, actually it is the power set of Q into tau star, है ना? और ये मैंने कब बताया था आपको? At the time of discussing the tuple of for PDA. तो मैंने उसमें बताया कि in case of non-PDA, non-deterministic PDA, all tuples have the same meaning, but the difference is only transition function. So the transition function in case of non-deterministic PDA work in this way or in this form. Very good. So now we will move to the question part. In this situation, as you see, as I told you, that we have to consider both the cases. Means suppose the string, as I already given to you, suppose this is the situation. So in this situation, in on this A, you can push this number to the stack. On this B, you can push this number into the stack. But as soon as you receive this B, in this situation, what we have to do in this situation, you have to write both the transitions for inserting into the or pushing into the stack, or cancelling the symbol from the previous one, or comparing with the B. आप दोनों के कंसीडर करके चलेंगे. तो देखिए, how can we design the transition diagram for this particular machine? Just see. In this situation, you can easily see, as I receive, जैसा मैंने आपसे कहा कि W है, इसको दोबारा से बताता हूँ. W क्या है? It may be the part of A or B. Means your string can be started by A or by B. A से भी हो सकती है, B से भी हो सकती है. It means simply if your string start with A, simply in this situation the stack position will be Z0 because it is the initial stack position, right? So as soon as you read A, just push A here, or your starting may be happen with B also. So in this situation, just you can push B into this stack. तो अगर हमारी इस दोनों ट्रांजिशन को देखिए, अगर हमारी स्टार्टिंग ए से होती है स्ट्रिंग की, इन दिस सिचुएशन यू आर इन Z0. ये स्टार्टिंग वाली बात कैसे कंफर्म हुई? Because in this stack position you are reading Z0, you are pop out Z0. It means that what? It means your stack is empty और आपका टेप से कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? पहला सिंबल. So if you are reading A from the tape side and Z0 from the stack side, so just you are pushing A to the stack. A को आपने stack में push कर दिया. हम Z0 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? We are also pushing Z0, but I'm not talking about this Z0 because हम इस Z0 को यहाँ पर हमने pop out किया और इसको हमने वापस से push कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ? कि there is no change into the stack in case of Z0. Only the changes are occur due to this A. Means A हमने आगे बढ़ा दिया. तो हमारा Z0 pop out हुआ और हमने push कर दिया. तो इसका मतलब there is no change into the stack. और A से हमारी स्टैक आगे हो गई. तो मतलब अगर हमारी स्टार्टिंग में A मिला तो हमने इसका मतलब क्या हुआ? स्टैक में डाल दिया. अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? योर स्ट्रिंग में स्टार्ट विद B. अगर B से स्टार्ट होती है, सिमिलरली वी हैव टू पुश B इनटू द स्टैक. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, नॉर्मल. क्योंकि ये काम हमने किसमें भी किया था? WC WR में भी किया था. बिकॉज इन दिस सिचुएशन अगर हम आपको क्वेश्चन दे देते AN BN, in this situation it is fixed that your string must be started by A, but in this situation the string can be started by A or by B. That's why you have to write both the transition assuming that string is started by A or string is started by B. Is it okay? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? Now, अब मेरी बात दूसरी क्या आई कि A यहाँ पर है, एक A आ गया. हम मान के चलते थोड़ी देर के पहले वाले के हिसाब से A आ गया और फिर 2A 3A 4A और भी आ रहे हैं. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? A आपको टेप से मिलेगा. ऑन द सेम टाइम एट द स्टैक साइड यू विल गेट द A, है ना? क्योंकि एक को आप रीड करके पुश कराते जा रहे हो. तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी A मिलेंगे योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू पुश दीज A इनटू स्टैक. तो देखो अगर A मिलता है तो हम A को स्टैक में डालते चले जाएंगे. ठीक है. अब B वाला केस कंसीडर करेंगे. अगर शुरुआत हमारी B से हुई तो B को हमने स्टैक में डाल दिया. अब हमारे पास और B आए तो सारे B को क्या करो? स्टैक में डाल दो. यहां तक क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. क्लियर? अब बात ये है, एक इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मान लीजिए A के बाद 2A आ गए, ठीक है, और एक B आ गया, आपने क्या किया? स्टैक में डाल दिया. अब ये जो B आया, ठीक है, ये जो B आया
तो सिचुएशन क्या हुई, बी बी, तो हमने तो क्या करा, स्टैक में डाल दिया, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं पाया, है ना। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे बी आया टेप से और बी आया स्टैक से, जस्ट यू हैव टू पुश दिस बी इनटू द स्टैक, हमने सारे बी को स्टैक में डालते चले गए। ये आपका ट्रांजिशन दिख रहा है आपको, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर वो ये वाला जो बी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये जो दूसरा वाला जो बी है, इट इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू रिवर्स, है ना। तभी तो देखो आप कैंसिल करोगे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो अब अगर ये पार्ट डब्ल्यू आर का नहीं है, तो मैंने क्या किया, सीधे पुश करा दिया। और मैं दूसरा भी ट्रांजिशन लिखूंगा कि अगर ये डब्ल्यू रिवर्स का पार्ट है, देखिए इधर, तो बी बी दोनों अगर बी मिलते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, स्टैक में क्या डालूंगा, नल। और सिमिलर केस वी हैव टू राइट फॉर ए ऑल्सो, है ना, कि जैसे ये वाला ए आ गया और ये वाला ए था, तो अगर हमारा ए, मान लीजिए ये लिखा आपने, ठीक है, तो अब आपने लिखा बी और फिर बी के बाद दूसरा बी आ गया, तो यहाँ पर या ऐसे कर लीजिए, बी से शुरुआत की, ए आ गया और अब ये ए आया, तो ये ए कैसे पता चलेगा ये डब्ल्यू का पार्ट है, डब्ल्यू रिवर्स का, ये तो प्रॉब्लम है हमारी। तो इस ए पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ट्रांजिशन डिफाइन करता हूं, क्या, कि अगर ये डब्ल्यू का पार्ट है तो हम पुश कर दें, तो हम ये वाले ट्रांजिशन काम करेंगे, राइट। इफ इट इज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ डब्ल्यू, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ डब्ल्यू रिवर्स, देन मैं क्या करूंगा, इस बी ए से और ये दोनों जब ए मिलेंगे तो क्या कर दूंगा, नल इसके स्टैक में राइट करूंगा, और फिर बी और बी मिलेगा तो स्टैक में नल राइट करूंगा। सो जस्ट वी आर राइटिंग द दीज टू ट्रांजिशंस आल्सो। मतलब ये समझ में आ गई ये वाली बात कि नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये वाली बात और ये वाली बात। ड्यू टू दीज टू ट्रांजिशन, this particular machine is non-deterministic because AA you are pushing A or AA you are pushing null. So this is the nature of non-deterministic, not defined actually, है ना, not clearly defined. इसमें क्या हो सकता है इस केस में, in this particular case machine will get confused that we have to push the element or we have to pop out the element, right. So this is the simple PDA is not possible for the case of WWR. Only the non-deterministic case is this particular problem can be solved out by the non-deterministic assumption, right. अब दोबारा देखो, फिर A और B आता है तो ये तो सीधे सीधे पुश करते चले जाओ, है ना, यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में क्या हुआ, जैसे B आता गया, आप नल कराते चले गए, A और A पे नल करते चले जाएंगे आगे, और जैसे ही आपको नल मिला, नल का मतलब क्या हुआ, टेप आपका एम्प्टी हो गया, राइट। एंड और द सेम टाइम आपकी स्टैक भी एम्प्टी हो गई, बिकॉज Z0 इज रिसीविंग एट द स्टैक साइड। तो आप क्या करेंगे, फाइनली वी आर पुशिंग Z0 टू द स्टैक एंड रीच टू द फाइनल स्टैक। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई भी एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी जो एग्जांपल आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे बी ए और ए बी, ठीक है। हम अपने समझने के लिए कैसे ले सकते हैं इसको, कि ये डब्ल्यू का पार्ट है और ये डब्ल्यू का रिवर्स है, ठीक है ना। और स्टैक की पोजीशन हमारे पास क्या होगी, Z0 होगा, राइट। सो स्टार्ट विद बी, बी कहां से मिलेगा, टेप साइड से, और Z0 यहां से मिलेगा। देखो बी Z0 का आपने पहला ये वाला ट्रांजिशन लगेगा, तो क्या होगा, बी स्टैक के अंदर आ गया। नाउ ए इज देयर, ए और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा ना। तो देखो ए टेप की साइड में होना चाहिए, ये वाला ट्रांजिशन लगेगा। इन दिस सिचुएशन ए टेप से मिलेगा, बी स्टैक से मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो कि ए बी को स्टैक में डाल रहे हो, क्योंकि बी तो पॉप आउट हो गया और ए बी स्टैक में डाला, तो स्टैक विल बी इंक्रीज बाई ए, एक से इंक्रीज हो गया, और टॉप पॉइंटर अब आपका यहाँ पर पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताना। अब जैसे ये ए आया, राइट, अब ये क्या है, ये हो सकता है ये डब्ल्यू का पार्ट हो, मशीन को तो पता नहीं है ना, तो आपको लेकिन पता है, तो आप अपने को वेरीफाई करना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, इस ए से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिवर्स आ गया, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही यहाँ से ए मिलेगा तो आपको इस टाइम पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो आप कौन सा वाला ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ए कैंसिल हो गया, हमारा टॉप पॉइंटर डिक्रीज होकर बी पर आ गया। फिर आपको क्या मिला, यहाँ पर बी मिला टेप पर, और आपका टॉप पॉइंटर से क्या मिला, बी मिला, तो बी और बी पर क्या हुआ, टॉप पॉइंटर क्या कर रहा है, बी और बी पर नल पुश करेंगे हम, तो नल पुश करेंगे मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, नल, टेप खाली हो गया, दैट मींस नल इज देयर। तो नल आपको यहाँ से मिला और टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, Z0 को। तो ये सिचुएशन हो गई और आप फाइनल पे आ गए। बट
अगर आप इसमें देखें, अगर आपने ये वाला केस लिया तो आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर मशीन दूसरा वाला केस ले लेती, क्या कि इस ए बी ए यहाँ पर ए मिलने पर, और पहले से ए मिलता है स्टैक से, है ना, तो ए के केस में अगर क्या करती, ए को भी पुश कर देती, तो क्या होता, ए और पुश हो जाता, और फिर क्या होता, बी के केस में बी भी पुश हो जाता, है ना। तो उस केस में हम इसका रिवर्स, तो ये पूरी किस तरीके से एज्यूम मान के चलती है हमारी मशीन, डब्ल्यू का पार्ट। तो डब्ल्यू रिवर्स जब आएगा तो डब्ल्यू रिवर्स इसका क्या हो सकता था, बी ए बी, तो ये काम करता है ना। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आपने पास किया और हमने जो ट्रांजिशन लेके चले उस तरीके से मशीन लेके चलेगी तो फाइनल पे पहुंचेगी। और अगर उसने क्या किया, सीधा पुश करा दिया, ये वाले ट्रांजिशन अप्लाई कर देती अगर मशीन, तो क्या होगा, वो कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो, थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि सर अगर आपने तो सर ये वाला ट्रांजिशन ले लिया और आप फाइनल पे पहुंच गए, अगर मान लो मशीन दूसरा वाला ले लेती तो कभी फाइनल पे नहीं पहुंचती। यस ऑफ कोर्स नहीं पहुंचती। तो फिर इसको डिजाइन करने का क्या फायदा हुआ, ये इसीलिए जो हमारी नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का क्या है कि उनका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज नॉट डिसाइडेड, दैट्स व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। आप श्योरली नहीं कह सकते कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब क्लियर हुआ बेटा? आप ए बी बी की बात कर रहे हैं बेटा, किसने कहा है अभी? अगर हम ए बी बी की बात करते हैं, ऐश्वर्या ने, ठीक है, अगर आप ए बी बी की बात करते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग इसको बिलोंग करेगी नहीं ना बेटा कभी भी, है ना, क्योंकि ए बी तो बी ए और आना चाहिए, है ना, तब सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पर क्या हुआ, स्टैक में डाल दिया, दूसरा भी आया, आप स्टैक में डाल दिया, तीसरा भी आया, तो आप दो दो काम कर सकते हो। तीसरे ये वाले बी पे आप या तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हो या ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, ये वाला, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो अगर मशीन ये वाला लेती है तो कैंसिल कर देगी, है ना, स्टैक में क्या बचेगा, अकेला ए। और अगर पुश करने वाला ऑप्शन ले लेती है मशीन तो क्या कर देगी, स्टैक में क्या डाल देगी, ए बी और बी, बस ये होगा इसमें बेटा एग्जीक्यूशन, बस। और यहाँ होगा जेड नॉट, दिस विल बी द पोजीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐश्वर्या समझ में आया बेटा? ए बी 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 ए, ओके। आप डब्ल्यू का लिख रही हो बेटा, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने डब्ल्यू का बताया, ए बी बी, है ना, ये डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू का रिवर्स क्या आना चाहिए, बी बी ए, राइट, ये आपका डब्ल्यू का रिवर्स है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर हमारा इस डिजाइन वाले डायग्राम से एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। देखो ये हमारी स्टैक की पोजीशन है, जेड नॉट स्टार्टिंग में रहेगा बेटा, राइट। जैसी ए मिला तो ए पे क्या है, ये वाला ट्रांजिशन हुआ, क्या लिखा है, ए मिला और जेड नॉट मिला स्टैक में, तो ए को पुश कर दो, जेड नॉट तो वापस जा ही रहा है, ए आ गया। जैसे बी मिला तो बी मिला कहाँ से, टेप से, और ए कहाँ मिलेगा, स्टैक से। तो बी और ए वाला ट्रांजिशन देखो, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये दूसरे नंबर, इस पर नंबर भी लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा बेटा, ठीक है। बी और ए में क्या किया आपने, बी को पुश कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, बी यहाँ पर मिला टेप पर, स्टैक पर, और बी आपका तीसरा वाला, ये यहाँ से थर्ड एलिमेंट मिलेगा। तो बीबी के केस में क्या है, आप दो ऑप्शन ले सकते हो, है ना। अब या तो आप बीबी वाले केस में क्या कर सकते हो, बी को पुश कर सकते हो, या बीबी के केस में ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो, राइट। तो अब आप इसमें मैं ये वाला ले रहा हूँ। अब यहीं पर ये नॉन डिटरमिन, ये कैसी प्रॉब्लम है, अनडिसाइडेबल, क्योंकि अगर मैं ये लेता हूं तो मैं फाइनल पे पहुंचूंगा, अगर मैंने ये ले लिया तो मैं कभी भी फाइनल पर नहीं पहुंचूंगा, ठीक है। तो मैंने ये लिया तो मैंने बी भी डाल दिया। अब क्या मिला इसके बाद, नेक्स्ट बी मिला, तो नेक्स्ट बी में मैंने चौथा नंबर ये वाला लिया, तो बी यहां से मिला और बी यहां से मिला, तो मैंने क्या किया, स्टैक से, स्टैक में क्या पुश किया, नल, कुछ भी नहीं किया, मतलब ये हट गया और हमारा टॉप पॉइंटर नीचे आ गया इस जगह पर। फिर दूसरा वाला बी आया, दूसरा वाला बी पे भी फिर मैंने कौन सा लगाया, ये वाला पांचवें नंबर पे मैंने कौन सा लगाया ट्रांजिशन, ये। तो क्या हुआ, बी मिला टेप से और बी मिला स्टैक में, हमने स्टैक में कुछ नहीं डाल रहा है अब, तो ये भी हमारा हट गया और टॉप पॉइंटर अब यहाँ आ गया। नाउ ए कहां से मिला, टेप से, ठीक है, और ए कहां से मिल रहा है, स्टैक से, तो दिस विल बी द सिचुएशन। तो क्या होगा, स्टैक में कुछ भी नहीं डाल रहे, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हम कहाँ आ गए, जेड नॉट पर, और हमारी स्ट्रिंग क्या है, एंड हो गया, दैट मींस वी आर गेटिंग हियर नल। तो नल हमें कहां से मिला, स्टैक से, और जेड नॉट कहां से मिला, सॉरी नल कहां से मिला, टेप से, और जेड नॉट कहां से मिला, स्टैक से, और मैंने वापस से जेड नॉट को पुश कर दिया और फाइनल स्टेट में आ गए। तो ये आपकी केस क्या हुआ, अगर मैंने ट्रांजिशन आपको समझाए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। और अगर आपने इस बीबी की जगह
ये वाला ले लिया पहले ही शुरू में ही, थर्ड नंबर पे यही वाला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, मशीन के पास दो ऑप्शन होंगे। इफ मशीन ऑप्ट दिस वन, दिस ये वाला अगर यही ऑप्ट कर लेती है तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सही नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब क्लियर हुआ बेटा? ऐश्वर्या क्लियर है? उन्नति, उन्नति आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, कुछ कह रहे हैं? हाँ बेटा, टर्मिनेट हो जाएगी, अगर वो नहीं होगा, स्टैक हमारे पास भरी पड़ी रहेगी, तो वो मशीन हमारी लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाएगी, उसको कोई सिंबल जब नहीं मिलेगा, इन दैट केस पीडीए विल बी हॉल्ट। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग, प्लीज आस्क, पूछिए कोई भी डाउट, अदर्स प्लीज। अब टाइम भी होने वाला है, आप पूछ लीजिए जिसको भी पूछना है। हाँ ठीक है दीक्षा बेटा, आप लोग दूसरी क्लास में जाइए, अगर यहाँ टाइम हो गया तो आप अभी मैं बंद कर देता हूँ, वैसे क्लास अपने आप ही ऑफ हो जाएगी, ये क्योंकि 30 मिनट लेट हुई थी ना स्टार्ट, इसलिए मैंने इसको क्लास को आगे बढ़ाया है। ठीक है नमन, थैंक यू, दीक्षा, उन्नति, ऐश्वर्या, सभी लोगों के लिए, आप लोगों ने क्लास अटेंड की और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए पीडीए की। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करा दूंगा ग्रामर, है ना, just we will start the grammar, then we will discuss context free grammar, properties of context free grammar, and how a context free grammar can be recognized by a particular string, or how can we design a context free grammar. All these things will be discussed in the next lecture. Okay, तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, जो डाउट है हम लोग डाउट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।